آج کی ویڈیو جمنائے مرد و خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ 1 مئی 2024 کو جوپیٹر 12 سال کے بعد آپ کے 8ویں گھر میں آئے گا اور 14 مئی 2025 تک آپ کے 8ویں گھر میں ہی رہے گا۔ تو یہ جوپیٹر کا بہت بڑا ٹرانزٹ آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں آنے والے 12 مہینوں میں ایسی تبدیلیاں لے کر آئے گا جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی، اور یہ آنے والے 12 مہینے آپ کے لیے ایک نئے دور کی شروعات اور گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، تاکہ کہیں آپ اس گولڈن ٹائم پیریڈ کو اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ضائع نہ کر دیں اور اس شاندار ٹائم پیریڈ سے آپ پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھ کر چلنا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جوپیٹر کا یہ بہت بڑا ٹرانزٹ جمنائے والوں کی زندگی کی سہولیات میں اضافہ کرے گا، اور 1 مئی کے بعد آپ اپنے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دیکھیں گے، اور پچھلے کافی ٹائم سے آپ کچھ ایسے حالات میں پھنسے ہوئے تھے جن سے باہر نکلنے کا آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اب ان مشکل حالات سے باہر نکلنے کے راستے بننا شروع ہوں گے۔ آپ کا تعلق چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، آپ اپنی زندگی میں واضح بہتری آتی ہوئی دیکھیں گے، کامیابی اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی، اور ایک نہایت اہم بات یہ کہ آنے والے 12 مہینوں میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہوگی، اور یہ جوپیٹر کا 12 سال کے بعد آپ کے 12ویں گھر میں ہونا آپ کے کاروبار اور کریئر میں غیر معمولی نوعیت کا چینج لے کر آئے گا، اور یہ بہت بڑا چینج آپ کے کاروبار اور کریئر کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے موجودہ کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یا اپنے کام کاج کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نئے سٹیپس لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس اور بڑے مالی فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آنے والے 12 مہینوں میں آپ کو خوب دولت کمانے کا موقع ملے گا۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ جہاں آنے والے 12 مہینوں میں آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، وہیں اس ٹائم کے دوران آپ کے خرچے بھی کافی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اس ٹائم کے دوران اپنے غیر ضروری خرچوں پر پوری طرح سے کنٹرول کر کے چلیں، ورنہ آپ کی اچھی آمدن کے باوجود بھی آپ مشکل حالات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ پروموشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا جن کا پروموشن ڈیو ہے، تو آنے والے 12 مہینوں میں یا تو آپ کو پروموشن ملتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر آپ کی سیلری میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہتر پیکیج پر کسی دوسری جگہ موو کرنا بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، اور وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ بے روزگار ہیں اور کسی اچھی جاب کی تلاش میں ہیں، یا وہ لوگ جن کی مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو 1 مئی کے بعد آپ کو کوئی اچھی جاب ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کی مستقل آمدن کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بن جائے گا۔ جوپیٹر کا 12 سال کے بعد آپ کے 12ویں گھر میں آنا ان لوگوں کی زندگی میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آئے گا جو کہ کوئی بھی آن لائن کام کرتے ہیں، فری لانسر ہیں یا پھر بیرون ملک میں رہ کر کوئی کام کرتے ہیں۔ تو آنے والے 12 مہینے آپ کے خوابوں کی تعبیر کا وقت ہوگا، ماضی میں کی گئی محنتوں کا صلہ ملے گا، قسمت آپ پر مہربان رہے گی اور آپ کی آمدن میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اور وہ لوگ جنہیں بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، تو 1 مئی کے بعد بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس ٹائم کے دوران آپ کو بیرون ملک جانے میں کامیابی ملے گی۔ آنے والے 12 مہینوں میں آپ کوئی گاڑی یا پراپرٹی وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ زمین جائیداد اور پراپرٹی کی سیل پرچیز سے آپ کو نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو روپے پیسے کے لین دین میں یا کوئی بھی ڈیل کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ کی جلد بازی یا آپ کی کوئی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے کوئی بڑی مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ جوپیٹر کی نظر چونکہ آپ کے 6ٹھے گھر پر بھی پڑے گی، جو کہ آپ کے چھپے ہوئے اور ظاہر دشمنوں کو بہت ایکٹیو کر دے گی، اور آپ کے حاسدین اور مخالفین نہ صرف آپ کے کام کاج بلکہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی مشکلات پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھلا رکھیں۔ یہاں ایک بہت کچہری اور لیگل معاملات سے خود کو دور رکھیں جو کہ بے روزگار ہیں، اور اپنی صحت کے حوالے سے بھی تھوڑا محتاط رہیں، کیونکہ اس ٹائم کے دوران آپ کا فیٹ انکریز ہو سکتا ہے اور آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے فاسٹ فوڈ اور آئلی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، اور وہ لوگ جنہیں پہلے سے ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے وہ بھی اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں، ورزش کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں اور بد پرہیزی بالکل بھی نہ کریں۔ کسی بھی نئے منصوبے پر کام شروع کرنے
या कोई भी नया कारोबार शुरू करने या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 मई के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास तौर पर 15 जुलाई के बाद का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको माली फ़ायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नज़र आते हैं और आपके नए कारोबारी ताल्लुकात बनेंगे जिनसे मुस्तकबिल में आपको बड़े माली फ़ायदे मिल सकते हैं। और ये जुपिटर का ट्रांजिट न सिर्फ आपके कामकाज और करियर को एक नई डायरेक्शन देगा, बल्कि आप ऐसे मंसूबों पर भी काम कर सकेंगे जिन पर आप काफ़ी टाइम से काम करने का सोच रहे थे। इसके अलावा आने वाले 12 महीनों में आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है या फिर अपने करियर के हवाले से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि आने वाले 12 महीनों में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या रहीमों का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें। फिरोज़ा या अकीक को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहनें और हर मंगल के दिन कोई भी सफ़ेद चीज़ का सदका व खैरात करें। आज की वीडियो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 मई 2024 को जुपिटर 12 साल के बाद आपके 7th हाउस में आ जाएगा और 14 मई 2025 तक आपके 7th हाउस में ही रहेगा। तो ये जुपिटर का बहुत बड़ा ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में आने वाले 12 महीनों में ऐसी तब्दीलियां लेकर आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। और ये आने वाले 12 महीने आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत और गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत होगी, ताकि कहीं आप इस गोल्डन टाइम पीरियड को अपनी कुछ गलतियों की वजह से ज़ाया ना कर दें और इस शानदार टाइम पीरियड से आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रख कर चलना है, इस बारे में भी आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जुपिटर का ये बहुत बड़ा ट्रांजिट न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा और आपके तमाम मामलात में नुमाया बेहतरी लेकर आएगा, बल्कि पिछले काफ़ी टाइम से जो आप कुछ ऐसी मुश्किलात में फंसे हुए थे जिनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो ये जुपिटर का 12 साल के बाद आपके 7th हाउस में आना आपको ऐसी तमाम मुश्किलात से बाहर निकालेगा। आपकी शख्सियत के अंदर एक मैच्योरिटी आएगी और आप माजी के तजर्बात से सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपने मुखालिफिन और दुश्मनों पर आपको फतह नसीब होगी और आपके आसपास हमदर्द और दोस्त की शक्ल में छुपे हुए दुश्मन भी आपके सामने बेनकाब हो जाएंगे। जहां कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, वहीं बहुत से लालची और कमज़र्फ लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। आने वाले ये 12 महीने आपके ख्वाबों की तकमील का वक्त साबित होंगे और इस टाइम के दौरान आप पूरे फोकस और मेहनत के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। आपके कामकाज और करियर को लेकर पहले से चल रही रुकावटों और मुश्किलात का खात्मा होगा और 1 मई के बाद आपके कारोबार और करियर में नुमाया बेहतरी आना शुरू होगी। जुपिटर का ये ट्रांजिट न सिर्फ आपके कामकाज और करियर को एक नई डायरेक्शन देगा, बल्कि आप ऐसे तमाम मंसूबों पर भी काम कर सकेंगे जिन पर काम करने का आप पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन किसी न किसी रुकावट की वजह से आप इसे नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से आप ऐसे तमाम प्लान्स को एक्शन में ला सकेंगे। आपके कारोबार और करियर में नुमाया तरक्की देखने को मिलेगी और आपकी आमदन में इजाफा होगा और इन आने वाले 12 महीनों के दौरान आप खूब दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने माली मामलात में आपको पहले से ज़्यादा मोहतात रहने की भी ज़रूरत होगी। इसलिए रुपए पैसे के लेन देन में या माली मामलात के हवाले से कोई भी फैसला लेते हुए जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें, वरना यहाँ आपकी छोटी सी गलती आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। और अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो इसमें भी आपको पहले से ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत होगी। वो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन जो कि कर्ज की वजह से परेशान हैं और कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो आने वाले 12 महीनों में आपका फाइनेंस मजबूत होगा और आपको कर्ज के बोझ से निजात मिलेगी। और वो लोग जो कि कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसे हुए हैं या फिर कोई लीगल मसला चल रहा है, तो इस टाइम के दौरान आप इन तमाम मसलों से भी निकल आएंगे। और वो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन जो कि सिंगल हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, लेकिन इनका रिश्ता होने में कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, तो ये जुपिटर का 12 साल के बाद आपके 7th हाउस में आना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। और 1 मई के बाद आपका किसी अच्छी जगह रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और आने वाले 12 महीनों में आपकी शादी होने के इम्कानात भी काफ़ी रोशन दिखाई देते हैं। और वो स्कॉर्पियो मर्दो ख़वातीन जो कि मोहब्बत के रिश्तों में हैं,
तो इनकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हुई नज़र आती हैं। आपका रिश्ता मजबूत होगा और वो लोग जिनका कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया था या फिर बातचीत बंद थी, तो 1 मई के बाद फिर से आपका पैचअप हो सकता है और तमाम नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। जुपिटर चूँकि आपके 7th हाउस में बैठकर आपके 11वें घर को देखेगा, तो इस टाइम के दौरान न सिर्फ आपको माली फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं, बल्कि इन आने वाले 12 महीनों में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या फिर कोई नेम फेम मिल सकता है। मार्केटिंग या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी ये जुपिटर का ट्रांजिट कामयाबी और तरक्की की नई राहें खोलेगा और आप काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतज़ार में हैं या फिर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले 12 महीनों में या तो आपको प्रमोशन मिलता हुआ नजर आता है या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन स्कॉर्पियो मर्दों ख़वातीन के लिए जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 1 मई के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। जुपिटर की नज़र चूँकि आपके 11वें घर पर पड़ेगी, तो ये टाइम कोई भी नया काम शुरू करने या कोई नया कारोबार शुरू करने या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी की सेल परचेज से आपको नफ़ा मिलता हुआ नज़र आता है। जुपिटर का ये ट्रांजिट जहां आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेकर आएगा, वहीं इस टाइम के दौरान मज़हब और रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आने वाले 12 महीनों में आप हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुक़द्दस सफ़र पर भी जा सकते हैं। और वो लोग जिन्हें पिछले काफ़ी टाइम से सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का सामना था, तो 1 मई के बाद रफ्ता रफ्ता इनकी सेहत में वाज़े बेहतरी आना शुरू होगी और स्कॉर्पियो वालों को काफ़ी टाइम के बाद एक सुख और राहत का एहसास होगा। फिर चाहे आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, आप अपनी ज़िंदगी में इन मस्बत तब्दीलियों को आता हुआ देखेंगे। जुपिटर का ये ट्रांजिट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुबारक साबित होगा और स्टूडेंट्स को इस टाइम पीरियड के दौरान कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि आने वाले 12 महीनों में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामों का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें। ज़मुर्द या पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहनें और हर मंगल के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका और खैरात करें। आज की वीडियो सैजिटेरियस मर्दों ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 मई 2024 को जुपिटर 12 साल के बाद आपके छठे घर में आएगा और 14 मई 2025 तक आपके छठे घर में ही रहेगा। तो ये जुपिटर का बहुत बड़ा ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में आने वाले 12 महीनों में ऐसी तब्दीलियां लेकर आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। और ये आने वाले 12 महीने आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत और गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत होगी, ताकि कहीं आप इस गोल्डन टाइम पीरियड को अपनी कुछ गलतियों की वजह से ज़ाया ना कर दें और इस शानदार टाइम पीरियड से आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रख कर चलना है, इस बारे में भी आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जुपिटर का ये बहुत बड़ा ट्रांजिट जहां आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और आसानियां लेकर आएगा और आपको ऐसी मुश्किलात से बाहर निकालेगा जिनमें आप पिछले काफ़ी सालों से फंसे हुए थे। वहीं इस टाइम के दौरान आपके मुखालिफिन और दुश्मन भी काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, जो कि न सिर्फ आपके कामकाज में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए परेशानियां पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले 12 महीनों में एक नहायत अहम चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, वो ये कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ सकते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर चाहे उसका ताल्लुक आपके कामकाज और करियर से हो, आपके रिश्तों से हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ से हो, आपके दुश्मन आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपको किसी मुश्किल हालात से दो चार कर सकते हैं। इसलिए अपने दुश्मन की चालों से बहुत ज़्यादा होशियार रहें और अपनी आँखों को पूरी तरह से खुला रखें। जुपिटर चूँकि आपके छठे घर में बैठकर आपके 10th हाउस को देखेगा और 10th हाउस होता है आपके कामकाज का और आपके करियर का, तो 1 मई के बाद आपके कारोबार और करियर में आपको वाज़े बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आपके कामकाज और करियर की तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। आप रुके हुए और पेंडिंग कामों को मुकम्मल कर सकेंगे और बहुत से ऐसे मंसूबे जिन पर आप पिछले काफ़ी टाइम से काम करने का सोच रहे थे, लेकिन किसी न किसी रुकावट की वजह से आप इसे नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले 12 महीनों में आप ऐसे तमाम प्लान्स को एक्शन में ला सकेंगे। आपकी आमदन में नुमाया इजाफा होगा
आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आप खूब दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ इस टाइम के दौरान आपकी इनकम इंक्रीज होगी, वहीं आपके गैर ज़रूरी खर्चे भी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आते हैं और आप बिना सोचे समझे कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए मशवरा है कि अपने गैर ज़रूरी खर्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल करके चलें, वरना आपकी अच्छी इनकम के बावजूद आप माली मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। जुपिटर का आपके 10th हाउस को देखना आपके कामकाज और करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा और आपको आने वाले 12 महीनों में बड़े माली फायदे और कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। इस टाइम के दौरान आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है जिसके लिए आप पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको कोई नेम फेम मिल सकता है। लेकिन जुपिटर के आपके 6ठे घर में होने से आपको सेहत के हवाले से पहले से थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक रहेगा, जिसकी वजह से आपको मैदे और पेट से मुतल्लिका मसाइल हो सकते हैं और मौसम की तब्दीली के टाइम में आपको खांसी, जुकाम और मौसमी बुखार जैसे मसाइल का सामना रहेगा। जुपिटर की नज़र चूंकि आपके 2nd हाउस पर भी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होगा और आप तमाम मामलात को बहुत समझदारी और पेशेंस के साथ हैंडल करते हुए नजर आएंगे और ये चीज़ आपके कामकाज और करियर में वाज़े बेहतरी लाने की भी वजह बनेगी और आप अपने टारगेट्स को बआसानी अचीव करते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतज़ार में हैं या फिर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले 12 महीनों में या तो आपको प्रमोशन मिलता हुआ नजर आता है या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सेजिटेरियस मर्दों ख़वातीन के लिए जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 1 मई के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है या फिर आपकी मुस्तकिल आमदन का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बन जाएगा। और वो लोग जो कि कोई ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर बैरून मुल्क में रहकर कोई काम करते हैं, तो आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको माजी में की गई मेहनतों का सिला मिलेगा। नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि आने वाले 12 महीनों में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामू का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें। फिरोज़ा या पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहनें और हर जुमेरात के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका और खैरात करें।